Namaste and hello and welcome back to my YouTube channel. My name is Yash Kaushik and my channel's name is Brainstorm with Yash. So today is the day when I'm making a first video on a football match. So it's a review and that too of none other than the El Clasico, FC Barcelona versus Real Madrid. 181st La Liga's El Clasico was played yesterday between these two historical clubs. These two are one of the best clubs in Europe right now, in world right now I should say. And to be just very clear in the beginning of my video, my all-time favorite football club is FC Barcelona. So if my videos you find out to be one-sided, then please, sorry, but yeah, FC Barcelona is my favorite team. So without any further delay, I should start with my match review. So yesterday match was played at Camp Nou, which is FC Barcelona's home stadium, and it was for the first time that El Clasico was played without any audience. It really breaks my heart because I am a football fan, I am a cricket fan, and when matches are played without audience, and that too such great matches, El Clasico, it breaks my heart. So yes, we know Real Madrid scored 3 goals and they won the match by 3-1. So it's a very good margin in football. If you won by 2 goals ka margin, it's a really good thing that it shows that you are in a very good form. Your team, the winning team, is in very good form, and the way you played your match, it was absolutely amazing. Real Madrid, you played absolutely amazing in the first half, in the second half. So if I now talk about from the first half, you got that position. You are one of those limited teams who comes to Camp Nou and manages to have that more percentage of possession with you than Barcelona. Because in La Liga, even in the last match, which was UEFA Champions League first match for FC Barcelona in the stadium, we saw that FC Barcelona's key is to keep possession with them. But in this match, yesterday's El Clasico, Real Madrid had most of the possession with them. And in the first half, only in the first 10 minutes, they were so epic 10 minutes. पहले ही 5वें मिनट में वाल्वर्दे, जो कि रियल मैड्रिड के प्लेयर, उन्होंने गोल मारा. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी डायरेक्ट राइट नाउ, सिर्फ और सिर्फ सर्जियो बुस्केट्स की गलती की वजह से वो गोल पड़ा. वो मार्क करने में कामयाब नहीं रहे वाल्वर्दे को, एंड वो गोल खा बैठे. एंड कहीं ना कहीं नेटो रोक सकते थे वो गोल, लेकिन स्टिल इट वॉज अ वेरी टफ चांस फॉर हिम एज अ गोल कीपर टू स्टॉप दैट गोल. बट डोंट वरी, FC बार्सिलोना, दैट इज आंसू फाटी, जो यंगस्टर है हमारे, उन्होंने बहुत जल्दी कम बैक किया. विद इन 3 मिनट्स, विद इन 180 सेकेंड्स उन्होंने कम बैक किया, एंड दैट टू बाय अमेजिंग बॉल विच वॉज गिवन बाय जॉर्डी एल्बा टू आंसू फाटी. वो भी रियल मैड्रिड के हाफ के अंदर. अमेजिंग इट वॉज, एंड आंसू फाटी ने एंड जो डिलीवर किया वो गोल, इट वॉज एब्सोल्युटली अमेजिंग बाय हिम. जॉर्डी एल्बा, अगर आपको नहीं पता मैं बता दूं, वो इंजर्ड थे आज से 2-3 मैच पहले तक, और वो नहीं खेले थे लास्ट 2 मैच बार्सिलोना के. बट दिस मैच, रोनाल्ड कोमन न्यू कि इस मैच में जॉर्डी एल्बा की इंपॉर्टेंस कितनी हो जाएगी. एंड इन द फर्स्ट 8 मिनट्स ही प्रूव कि वाई जॉर्डी एल्बा हैड टू प्ले दिस मैच. फर्स्ट हाफ में हमने बार्सिलोना की तरफ से एक और बहुत आप टैक्टिकल चेंज ही कहेंगे इस चीज़ को. फिलिप कोटिनो, ये लेफ्ट में खेल रहे थे कल, जो कि एक अक्सर सेंटर मिड में खेलते हैं, लेकिन कल ये लेफ्ट पोजीशन पे ज़्यादा खेलते हुए देखे फ्रॉम द बिगिनिंग. ये एक स्ट्रैटेजी हो सकती है बिकॉज रियल मैड्रिड मस्ट नॉट हैव प्रिपेयर्ड इन दैट वे कि कोटिनो को लेफ्ट में उन्हें टैकल करना पड़ेगा. बट इट प्रूव प्रिटी मच वेल बिकॉज कुटिनो के पास जब भी बॉल है, उन्होंने मेक श्योर किया कि एटलीस्ट शॉट ऑन टारगेट उन्होंने खेले. उन्होंने 2 शॉट ऑन टारगेट मारे इन दी एंड. स्टिल गोल नहीं मार पाए, बट ही प्लेड एक्सट्रीमली वेल फॉर बार्सिलोना येस्टरडे. पहला येलो कार्ड नाचो को मिला, दूसरा येलो कार्ड कैसीमिरो को मिला. दोनों का जो फाउल था, इट वॉज डिलिबरेटली इट वॉज प्रिटी मच विजिबल टू अस फैंस. एंड FC बार्सिलोना के सिर्फ एक प्लेयर को फर्स्ट हाफ में येलो कार्ड मिला था, लॉन्गलेट को. सो उन सबको छोड़ के, अगर इन 3 येलो कार्ड्स को छोड़े तो पोजीशन रियल मैड्रिड के पास ज़्यादा थी. और अगर मैं अपने बेस्ट प्लेयर बताऊं तो FC बार्सिलोना की तरफ से फर्स्ट हाफ में जो बेस्ट प्लेयर थे, इट वॉज क्लियरली लियोनेल मेसी. जिस हिसाब से उन्होंने एंड में डिफेंडिंग भी करते हुए दिखे. फर्स्ट हाफ के एंड में जब उन पे काफ़ी फाउल्स हो चुके थे ऑलरेडी, तो वो सेंटर मिड में आके डिफेंडिंग पोजीशंस पे आके डिफेंडिंग करते हुए दिखे थे बार्सिलोना की तरफ से. एंड अगर मैं थोड़ा एक वर्स्ट प्लेयर बताऊं, या फिर जिन्होंने अपने कैलिबर के हिसाब से नहीं खेला बार्सिलोना की तरफ से फर्स्ट हाफ में, इट वॉज क्लियरली विजिबल दैट सर्जियो बुस्केट्स वॉज दैट मैन. वो ढंग से खेल नहीं पाए, बॉल आई तो वो जल्दी लॉस कर रहे थे बाय हार्ड टच, एंड वो कहीं ना कहीं बार्सिलोना के लिए अगेंस्ट खेला फर्स्ट हाफ में. रियल मैड्रिड की तरफ से फर्स्ट हाफ में जो बेस्ट प्लेयर थे, इट वॉज लिटरली टोनी क्रूज. जो कॉर्नर्स उन्होंने लिए, जो उन्होंने मेक श्योर किया कि बॉल रियल मैड्रिड के पास ही ज़्यादा रहे. एंड जो उनकी तरफ से वर्स्ट प्लेयर थे आई वुड से फर्स्ट हाफ में, नाचो. वो ही एक रीज़न है कि फर्स्ट हाफ में नाचो को रिप्लेस कर दिया गया. फर्स्ट हाफ में ही एक पहला सब्स्टिट्यूशन आ चुका था फ्रॉम रियल मैड्रिड.
So at halftime, the score was 1-1. Valverde and Ansu Fati were the scorers for both teams respectively, and it seemed like कि पहला हाफ जितना रोमांचक था, जितना इंटरेस्टिंग था बोथ टीम्स के लिए और ओवर वर्ल्ड के फैंस के लिए, एल क्लासिको के फैंस के लिए, उतना ही सेकेंड हाफ होगा और उससे काफ़ी बेटर था आई शुड से। सेकेंड हाफ में सबसे बढ़िया चीज़ जो हुई कि रियल मैड्रिड को थोड़ी पोजीशन कम मिली। बार्सिलोना ने मेक श्योर किया, मे बी कोमेन ने बोला हो हाफ टाइम में अपनी टीम को कि वी नीड टू प्ले विद अ स्ट्रेंथ, जो उनकी पोजीशन स्ट्रेंथ है, जो पोजीशन अपने पास रखते हैं, वो प्रेशर बनाते हैं ओपोनेंट पे, उन्हें उस पर खेलना चाहिए, एंड उन्होंने उसके हिसाब से खेला। बट रियल मैड्रिड वर इन कंप्लीटली डिफरेंट फॉर्म। वो पिछले 2 मैच हार के आए, 1 फ्रॉम ला लीगा, 1 फ्रॉम यूएफए चैंपियंस लीग, एंड उनको इस मैच में अगर हारते तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उल्टा पड़ जाते उनकी टैक्टिक्स, बट ऐसा नहीं हुआ। रियल मैड्रिड की तरफ से सेकेंड हाफ में 2 गोल आए, एंड दोनों गोल बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अमेजिंग थे। जो दूसरा गोल रियल मैड्रिड की तरफ से मारा उनके कैप्टन सर्जियो रामोस ने मारा, पर क्या वो पेनल्टी थी? ये डिबेटेबल है, क्या वो पेनल्टी थी या नहीं थी। इन दी एंड रेफरी ने रिव्यू लिया, ऑन फील्ड रिव्यू लिया, एंड इट हैपेंड टू बी अ पेनल्टी, क्योंकि लॉन्गलेट ने क्लियर जर्सी पुल करी थी एंड इट्स अ फाउल। सो ठीक है, पेनल्टी मिली। बट जो मेरा क्वेश्चन अभी आप सबके लिए, जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्या फर्स्ट हाफ में नाचो ने जो लियोनेल मेसी पे फाउल किया था, क्या वो फाउल नहीं था? क्या वो पेनल्टी डिजर्व नहीं होती बार्सिलोना के लिए? क्योंकि अगर ऐसा होता तो हम हाफ टाइम में 2-1 के लीड के साथ जाते बार्सिलोना, बट ऐसा नहीं हुआ, हम 1-1 के साथ गए, एंड सेकेंड हाफ में मैड्रिड को वो मिली पेनल्टी एंड रामोस ने ली। बहुत कम होता है कि रामोस पेनल्टी मिस कर दें, और ऐसा कल नहीं हुआ, उन्होंने गोल मारा, बिल्कुल मारा। उनकी 45th अपीयरेंस थी, सबसे ज़्यादा अपीयरेंस अभी तक एल क्लासिको के लिए। सो गुड, लाइक इट वाज अ वेरी गुड पेनल्टी टेकन बाय रामोस। पर किसी हद तक सेकेंड हाफ की जो बिगनिंग हुई थी, बार्सिलोना बहुत अटैकिंग उस टाइम ही खेल रही थी अपना फुटबॉल। कुटिनो, आंसू फाटी, जॉर्डी अल्बा, इन तीनों ने मेक श्योर किया जितनी बॉल्स हम उनके अंदर डाल पाएँ, गोल्स पे ऑन टारगेट मार पाएँ, हम पूरी कोशिश करेंगे, वैसा हुआ। पर कोर्टुआ कितने अच्छे गोलकीपर उन्होंने कल दिखाया, उन्होंने बहुत अच्छे सेव्स किए। पर नेटो को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। येस, ही इज द सेकंड ऑप्शन एज अ गोलकीपर फॉर एफसी बार्सिलोना। देयर फर्स्ट चॉइस मार्क-आंद्रे ter Stegen इज आउट इंजर्ड, बट ही विल बी बैक वेरी सून, विद इन 2-3 वीक्स नाउ। पर नेटो ने जिस हिसाब से गोल कीपिंग करी है कल फॉर बार्सिलोना, अमेजिंग। मतलब 3-1 का आई शुड से 5-1 हो सकता था, पर उन्होंने बहुत अच्छे सेव करे। उनके रिफ्लेक्सेस कल क्लियरली विजिबल थे दैट he really deserves to be in the first team, like to be the first choice keeper. इन दी एंड जो कल सबसे रोमांचक एक चीज़ देखने को थी, जैसे 81st मिनट का खेल शुरू हुआ फुटबॉल कल एल क्लासिको में, तो कोमेन को कहीं ना कहीं दिख गया कि हम हार तो सकते ही, हार तो रही है इनफैक्ट, लेकिन अगर हम जीतने के अटैकिंग चांस के साथ जाएं। तो मेरे को याद है, मैंने लास्ट ईयर जो लास्ट सीजन हुआ था उसमें बार्सिलोना का लास्ट ला लीगा का मैच था, जिसमें कीके सेटियन वाज द मैनेजर ऑफ एफसी बार्सिलोना, और उन्होंने एक टाइम पे 4 अटैकिंग ऑप्शंस खिलाए थे लास्ट के 10 मिनट में मैच में, और मुझे बहुत शॉकिंग डिसीजन लगा। बट कल रोनाल्ड कोमेन ने 4 नहीं बल्कि 5 अटैकिंग ऑप्शंस एक साथ खिलाए, लाइक फॉर लास्ट 10 मिनट्स। आई क्लियरली रिमेंबर लियोनेल मेसी, मार्टिन ब्रेथवेट, उस्मान डेम्बेले, आंटुआन ग्रीजमैन एंड ट्रिनकाओ, ये पांचों एक साथ खेल रहे थे, एंड पांचों अटैकिंग ऑप्शंस है बार्सिलोना के। दे वर ऑन द फील्ड टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम, मे बी इट हैपेंड फॉर बार्सिलोना दैट 5 अटैकिंग ऑप्शंस आपके एक साथ खेल रहे हैं फॉर द लास्ट 10 मिनट्स। बिकॉज कोमेन की स्ट्रैटेजी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी कि मैं डिफेंसिव नहीं खेलूंगा, मैं ड्रॉ के लिए नहीं जा रहा, मैं 2-1 की अगर हारूंगा तो 3-1 से ही वॉज रेडी टू एक्सेप्ट दैट डिफीट अगर एक और गोल पड़ता है, जो कि पड़ा। लूका मॉड्रिच ने आते ही गोल मारा, एंड दैट टू बहुत स्ट्रैटेजी के साथ। अगर हिंदी भाषा में बोलूं, बहुत चालाक गोल था। उन्होंने 2-3 बार पहले नेटो को कंफ्यूज किया, देन फ्रॉम द लेफ्ट फुट ही स्कोर्ड, एंड ही स्कोर्ड एब्सोल्युटली अमेजिंग। इन द एंड ही स्कोर्ड एट द 90th मिनट। इन द एंड बार्सिलोना लॉस्ट द मैच बाय 3-1, एंड to be very honest, Barcelona does not deserve such a scoreline in the end, because the way they played the whole 95 minutes yesterday, it was absolutely amazing. 3-1 thoda harsh scoreline hai, but Real Madrid truly deserve to win this match. Like the way they played, they are amazing right now. Unke jo Zidane, I mean manager, coach, he is absolutely amazing. La Liga जीत चुकी है रियल मैड्रिड लास्ट सीजन, सो दे हैव दैट कॉन्फिडेंस विद हिम कि हम स्पेन के चैंपियंस अभी भी बन सकते हैं। बट लेट्स सी, ला लीगा अभी शुरू ही हुई है, 5-6 महीने बाकी हैं ला लीगा को खत्म होने में। दिस वाज मी यश कौशिक विद दिस एल क्लासिकोज रिव्यू। इफ यू फाउंड इट इंटरेस्टिंग देन प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए, अगर क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है दैट आई एम मेकिंग अ फुटबॉल रिव्यू। अगर आपको कुछ उल्टा सीधा गलत लगाओ देन प्लीज सजेशंस अपने दीजिए कमेंट सेक्शन में, आई लर्न फ्रॉम देम।
Thank you so much for watching this video, and mostly I'll be making FC Barcelona match ke previews and reviews. So do catch me in the next video, and tab tak ke liye khayal rakhiye, take care and good night.